Good morning, everyone. My name is Priya Yadav. With respect to my educational qualification, how qualified I am, you can go and check out in the About section of my YouTube channel. However, I must tell you that I am a graduate from Sri Venkateshwara College, Delhi University, and I am currently pursuing my Masters from Sri Ram College of Commerce. I have planned to take up the class 11th accountancy owing to paucity of time as well as जो limited resources available हैं, it is better and safe to stay at home and study. So in the current scenario and in the prevailing demand, I have launched an online course for class 11th accountancy. ठीक है, the entire thing about the class and everything we'll discuss in the end of session, but right now let's start up with the subject matter. In today's class, you just need one register, alright? The entire class, the conduct of the class will be in a storytelling format. Whatever you are supposed to write, I'll dictate you. You don't have to write the things which I am writing on the board and which are unnecessary. So you just get the register. तो आप अपना register ले लें और start करें. जो आपका initial page है, you need to write just 3 things which will be the outcome of the class. What we are going to discuss in this class. There are 3 things which you will be through with once you are going to exit with the class is the history of accountancy, meaning of accountancy. It is not accountancy, it is accounting. I am using 2 terms deliberately. Accounting और accountancy दो अलग terms हैं. We'll discuss it in the further lectures. So write history of accounting, meaning of accountancy, and aims/objectives of accounting. Alright. I hope you guys have written it. Now let's just start up with the history of accounting. Accounting जो है वो 4 साल पहले शुरू हुई थी ईरान में और एक बेबीलोनिया जगह है वहां पर. इजिप्ट में और इराक में एक जगह है बेबीलोनिया, वहां से स्टार्ट हुई थी. वहां पर क्या था कि पहले वेज पेमेंट था, टैक्स था, तो आप एक जगह ट्रांजैक्शंस लिखते थे, तो ऐसे वहां से अकाउंट्स को मेंटेन करना स्टार्ट किया गया. स्लोली एंड ग्रेजुअली 23 सेंचुरीज पहले हिंदुस्तान में अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन कौटिल्य ने कराया. वी आर वेल वर्स्ड विद दिस पर्सनालिटी कौटिल्य. ये एक बहुत ही रिनाउंड मिनिस्टर थे जो हिंदुस्तान के चक्रवर्ती सम्राट थे चंद्रगुप्त मौर्य. उनके जो चाणक्य थे उन्होंने एक किताब भी लिखी है अर्थशास्त्र, जो बेसिकली आपको बताता ही ये है कि आप किस तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करें. सो 4000 BC मतलब 4000 साल पहले अकाउंटिंग जो था वो ग्लोबल लेवल पे इनिशिएट हुआ था और 23 सेंचुरीज पहले अकाउंटिंग केम इनटू इंडिया. सो दिस वाज द हिस्ट्री. ये आपके कोई एग्जाम में नहीं आता है. यू जस्ट नीड टू नो द सब्जेक्ट विच यू आर गोइंग टू स्टडी, हाउ इट ऑल स्टार्टेड एंड हाउ इट ऑल ओरिजिनेटेड. Now we are going to look at the meaning of accounting. So now what I am going to write down on the board, there is no need for you to write it down in your register. I'll dictate you जब आपका टाइम आएगा. अभी केवल आप सुने और समझे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ. Identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, communicating or communication. Economic events, of an organization. A link will be developed between the two things, the economic events and the communication, which we'll discuss and you will get to know. अकाउंटिंग एक्चुअल में होता ही क्या है? अकाउंटिंग शुरू होता है कि आप लोग आइडेंटिफाई करें
अब आप आइडेंटिफाई किसे करेंगे? आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस है जो आपने एस्टैब्लिश किया है, और कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शंस है। अब इसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपका एक रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले आपको एक जगह चाहिए होगी। आपको सपोज वो जगह 50,000 रेंट पर मिलती है, ये आपका बिजनेस का खर्चा है। लोग आएंगे, फर्नीचर पे लोगों को बैठाओगे, फर्नीचर खरीदा 50,000 का, ये आपका बिजनेस का खर्चा है। अब उसी ऑफिस में आकर के आपकी वाइफ आपसे 50,000 रुपए लेके चलेगी, वो आपका बिजनेस का खर्चा नहीं है। हालांकि आपने अपने बिजनेस प्रेमाइस में परफॉर्म किया है, पर वो आपका घर का खर्चा है, तो वो आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस नहीं है। आपने अपनी डोमेस्टिक हेल्प को पे किया जो आपके घर पर काम करती है या करता है, तो वो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है। तो आइडेंटिफाइंग में आप सबसे पहले देखते ही ये है कि कौन सी ट्रांजैक्शंस आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है, दैट इज बीटी, शॉर्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, और नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शंस। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेम इज बीइंग डन इन दिस स्टेप। नाउ एक बार आपने देख लिया कि ये मेरे बिजनेस की ट्रांजैक्शन है और ये मेरे बिजनेस की नहीं है, उसके बाद आप ये देखेंगे कि उसकी मेजरिंग क्या है। मेजरिंग मतलब उसकी कुछ मॉनेटरी वैल्यू है या नहीं, या ऐसे ही हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी है, उसमें रिलेटेड आप कोई पॉलिसी बनाते हैं। नाउ दैट इज पर्टेनिंग टू योर बिजनेस, ठीक है, वो पॉलिसी पर्टेन करती है आपके बिजनेस को। नाउ कैन यू से कि ये जो पॉलिसी है ये मुझे 1 लाख का फायदा देगी? यू कैन नॉट से। या फिर आपके कंपनी में कोई बहुत ऑनेस्ट एम्प्लॉय काम करता है, यू आर आइडेंटिफाइंग कि वो मेरे बिजनेस से डील करता है, बट क्या उस ऑनेस्टी को आप मेजर कर सकते हैं कि 1 रुपए का ऑनेस्ट इंसान है या वो 1 लाख का ऑनेस्ट इंसान है? नो, यू कैन नॉट मेजर इट। बट अगर आप वहीं अपनी कंपनी के लिए कोई फर्नीचर वगैरह खरीदें, तो आप बोल सकते हैं 50,000 का फर्नीचर लेकर के आए, 30,000 का स्प्लिट एसी लग गया, आते हुए 1,000 रुपये हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो मेजरिंग में जितनी भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, उनकी कुछ ना कुछ मॉनेटरी वैल्यू होनी ही चाहिए। सो मॉनेटरी वैल्यू। और अब आपने देख लिया, ठीक है भाई, मॉनिटरिंग वैल्यू है। अब अगर वो आपकी बिजनेस की मॉनिटरी वैल्यू की ट्रांजैक्शन है तो उसको रिकॉर्ड करना बनता है। ऐसा तो होगा नहीं कि आपने बिजनेस शुरू कर लिया और आप कोई सामान खरीद के ले आए और दिमाग में ही रख लेंगे। नहीं, आप एक किताब पे लिखेंगे कि मैंने क्या खर्चा किया आज पूरा। तो उस चीज को मेंटेन करने को हम कहते हैं जर्नल एंट्री, वो रिकॉर्डिंग में आता है। और जो जर्नल एंट्री है ये अभी आप सिर्फ एक टर्म की तरह समझ लें, क्योंकि एक पूरा का पूरा चैप्टर है जो ऑलमोस्ट आपका 1 से 1.5 वीक कंज्यूम कर सकता है, क्योंकि ये बेसिक है अकाउंटेंसी का। अगर आपको जर्नल पास करनी नहीं आती, योर +1, +2, कॉलेज, मास्टर्स, wherever you go in the field of accountancy, it will be difficult for you to sustain over there. उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाई नाम से समझ में आना चाहिए कि आप एक तरीके की चीज को एक जगह लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अगेन, तो आप कुछ सामान कैश में लेके आए और कुछ सामान आप उधारी पे ले आए। आपने कैश की भी वहीं लिख दी और उधारी की भी वहीं लिख दी, बट जब रात को आप टोटल करने का सोचेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू कॉम्प्रीहेंड कि यार कैश कितना लग गया, क्रेडिट कितना लग गया, उस हिसाब से। ऑलराइट, तो क्यों ना इसको आसान किया जाए, एक पेपर पे सारी कैश की ट्रांजैक्शंस लिखें और दूसरे पेपर पे सारी क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस लिखें। सो एट द नाइट व्हेन यू हैव टू टैली डाउन योर अकाउंट्स, इट विल बी प्रीटी मच इजियर फॉर यू ओनली कि यार कैश इतना लग गया, उधारी का सामान इतना है, इसको इतने बाद देना है, और कैश की तो तुरंत पेमेंट हम करके ही आएंगे। सो इन अकाउंटिंग लैंग्वेज, इन द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स, क्लासिफाइंग कैन बी पुट अंडर लेजर। Again, there is a separate chapter on ledger and you will again require somewhere around 1 week to master it. Ledger भी बहुत important है, क्योंकि आपके अकाउंट जब मैच नहीं करते हैं, आप लेजर ही देखते हैं और जर्नल एंट्रीज ही देखते हैं। चाहे आप इसे कंप्यूटर के थ्रू ही कर रहे हो, पर अगर आपके अकाउंट्स में कुछ भी गड़बड़ हो गई, आपको यहीं जा करके देखना है। तो ये है इन दोनों टॉपिक्स को समझने की इम्पोर्टेंस। लास्ट इज समराइजिंग। अब आपने
देखा कि ठीक है ये मेरी कैश की ट्रांजैक्शन से पूरा पन्ना भर गया, ये मेरी क्रेडिट की है पूरा पन्ना भर गया, पीछे देखा ये मेरे देनदार है पूरा पन्ना भरा हुआ है, ये मेरे लेनदार है पूरा पन्ना भरा हुआ है। अब क्या आप पूरी की पूरी किताबें उठा उठा के अलग अलग जगह घूमेंगे? नो, आपको रहेगा क्या एक पन्ने पे सब कुछ लिखा रहे तो मुझे भी आसानी होगी। तो इसको कहते हैं समराइजेशन। सारा कैश का टोटल कर लिया एक पेज पे, सपोज एक पेज पे आपका पूरा कैश का टोटल 5 लाख आता है, तो अब आप सिर्फ उस 5 लाख को एक दूसरे पेज पे लिख लो कैश 5 लाख। पूरा क्रेडिट जो आता है सपोज 2 लाख का आता है, राइट इट क्रेडिट। कितनी बिक्री कर दी? 5 लाख की बिक्री कर दी। आपने पूरे पन्ने पे सेल्स किसको किया कैसे किया उससे मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आप क्या बोलते हैं, मेरी तो इतनी बिक्री हो गई 5 लाख की, तो एक पन्ने पे मतलब दूसरे पन्ने पे सेल्स। तो इस तरीके से आपने पूरे दिन का जो भी आपका काम हुआ सिर्फ एक पन्ने पे समराइज कर दिया आपने। इसको कहते हैं समराइजेशन। जब आप जर्नल एंट्री को और लेजर को कंप्रेस कर देंगे इट विल बी समराइजेशन। एंड इन द टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इट विल बी नथिंग बट ट्रायल बैलेंस प्लस बैलेंस शीट। ठीक है, अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग। देखिए +1 में आपके सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट कर रहे हैं, कुछ डिलीट ही कर रहे हैं उन्होंने, बट जो डिलीट किया वो सब आलतू फालतू ही डिलीट है। काम की कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दीज थिंग्स। हाउ कैन यू? आप 12th में फ्लंक कर जाएंगे। तो ये कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत पार्ट है आपका जो डिलीट किया गया है। ठीक है, एल्स यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिकेशन। आपने सारा ताम झाम कर लिया, आपने एक बिजनेस खोल लिया, आपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को मेजर कर लिया, जर्नल बना दी, लेजर बना दी, ट्रायल बैलेंस बना दी, बट अब आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है। ठीक है, तो क्या आप सारे डॉक्यूमेंट दबा के बैठ जाओगे? नो, आप लोगों को दिखाओगे देखो मेरी ये वैल्यू है, मेरी ये पोजीशन है, मेरे बिजनेस की वर्थ आज की डेट में 10 लाख रुपए की है, आओ मेरे साथ हाथ बढ़ाओ। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है? लेट्स टेक, हम इसको थोड़ा करंट एग्जांपल से समझते हैं। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है आज की डेट में? बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टाटा है, रिलायंस है, बिरला है और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं स्टॉक एक्सचेंज पर है। क्यों? वो लोगों को दिखाती हैं देखो ये हमारी वैल्यू है, आओ पैसा लगाओ, स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे होगा, कमाओ और जाओ। अब वो आपके ऊपर है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हमें नहीं जाना। पर कंपनी ने आपको क्या क्या कम्युनिकेट किया कि आओ पैसा लगाओ, और ये कम्युनिकेशन किसके थ्रू होता है? समराइजेशन के थ्रू। आप उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे, मुनाफा देखोगे, नुकसान देखोगे, वो आपको कहां से दिखेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिखता है। बैलेंस शीट से आपको उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। अगर आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा है फाइनेंशियल पोजीशन, बैलेंस शीट, इट्स ओके। आप केवल इतना समझे कि ये टर्म्स हैं और कॉन्सेप्ट समझें, टर्म्स समझें, इनके डिटेल में मत जाए, क्योंकि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता व्हेन यू विल प्रोसीड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। एक बार जब हम सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे दोबारा से आके पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट्स एंड यू विल बी एबल टू गेट थ्रू इट। तो कम्युनिकेशन का मतलब समझ में आया। एक और एग्जांपल लेते हैं रीसेंट कॉन्टेक्स्ट से। अभी पूरी दुनिया में लॉकडाउन चल रहा है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस ओनली, ठीक है, बट देयर कंपनी हैज इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड्स ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड थ्रू आउट द ग्लोब। द कंपनी इज ग्रोइंग। हाउ? कम्युनिकेशन। वैल्यू है। फेसबुक के साथ एक नया टाई अप साइन किया इन्होंने, क्यों? क्योंकि अपनी पोजीशन दिखा सके, देखो हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टार्टिंग क्लास 11th अकाउंटेंसी, मेरे को भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा आप लोगों को। यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, आप लोग देखेंगे तो मेरे पास आएंगे। अगर मैंने वीडियो बना के अपने पास रख लिया तो मैं कम्युनिकेट नहीं कर पाई आप लोगों को, तो आप आएंगे भी नहीं। सो दिस इज व्हाट कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट। नाउ अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स, economic events which pertain to your organization is of utmost important। और ये चीज हम यहाँ समझ चुके हैं आइडेंटिफाई करने में चीजों को और मेजरिंग में। सी, इकोनॉमिक इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से पर्टेनिंग याद आया बीवी का खर्चा और कंपनी का खर्चा। दिस इज आइडेंटिफिकेशन कि आप ये देख रहे हैं कि खर्चा ऑर्गेनाइजेशन का है भी या नहीं।
इकोनॉमिक इवेंट्स पैसे का मैटर है या नहीं? अगर पैसा इन्वॉल्व नहीं होता तो रिकॉर्ड कैसे करोगे? आप किसी की लॉयलिटी रिकॉर्ड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इकोनॉमिक इवेंट्स मेजरिंग, ठीक है। Now I said that a link will be developed between economic events of the organization and communication. ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है. So this is the same link कि अगर आप अपनी कंपनी के इकोनॉमिक इवेंट्स को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे, how would you grow? So survival of the fittest or the one who keeps on changing with the changing environment is the one who is going to sustain in long run. Alright. So now अब आप अकाउंटिंग की डेफिनेशन लिखें. Now it is the time for you to write down. अभी तक आपको सिर्फ समझना था, कुछ लिखना नहीं था. Now write down meaning of accounting. Accounting can be defined. Accounting can be defined as the process of identifying within brackets business transactions and non-business transactions, comma, measuring within bracket monetary value of the transactions, comma, recording within brackets journal entry, comma, classifying within brackets ledger, comma, summarizing within brackets trial balance and balance sheet, and communicating the required information relating to economic events of an organization and communicating the required information relating to economic events of an organization to the interested users of such information. ठीक है, इंटरेस्टेड यूजर समझ में आ गया? मतलब उन्हीं को दिखाएं जिनको आपके बिजनेस से मतलब है. ऐसा नहीं कि राह चलते किसी इंसान को पकड़ के अपनी बैलेंस शीट दिखा रहे हो. नो, वो थोड़ी इन्वेस्ट करेगा. ठीक है, उसी को दिखाएं, अपने सप्लायर को दिखाएं, अपने कस्टमर को दिखाएं. ऐसे थोड़ी कि जा रहे रिक्शा वाला पकड़ ले, देखो मेरी बैलेंस शीट. नो, इट्स ऑफ नो यूज. So the required user, the interested user is also important. I hope now we are through with the definition of accounting. What does accounting mean in actual? Now we are going to discuss the aims of accounting. Again, take a back seat, just listen out to the story and I'll dictate you 3 to 4 points which are necessary or which are to be considered as the aim of accounting. See, in my class, you are not supposed to write until unless I ask you to write. Because whatever I am going to speak, whatever I am going to recite or tell you guys, or tell you people, sorry, I am going to dictate it in an academic format. आप एक raw language में लिख लेंगे और उसका आपको इस्तेमाल नहीं आएगा. At the end of your semester or your exam, आपको academic language चाहिए. ठीक है, और academic language आपकी तभी बनेगी जब आप understand करेंगे. Now, if अगर आपने ये ध्यान से सुना है तो अब आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अकाउंटिंग क्या होता है. अब एम्स बोल लें. नाउ गिव अनदर हेडिंग, एम्स / ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्यू पॉइंट्स. ड्रॉप डाउन योर पेन्स एंड जस्ट लिसन आउट टू मी. मैंने आपको हिस्ट्री जब स्टार्ट की, मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग कहीं बेबीलोनिया की जगह पे जाकर के स्टार्ट हुई और इजिप्ट में स्टार्ट हुई, क्योंकि उनको रिवेन्यू वगैरह रिकॉर्ड करना था, कितना पैसा आ रहा है. वेज जो था उनका डेली पेमेंट, वो रिकॉर्ड करना था, कितना पैसा जा रहा है. तो बेसिकली कैन आई सेड कि अकाउंटिंग शुरू ही इसलिए हुई ताकि हम रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकें. आज से 23 सेंचुरी पहले जब अर्थशास्त्र आया कौटिल्य के थ्रू,
तो भी वो इसीलिए आया था कि वो ये बताता था कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है। सो कैन आई से इट कि अकाउंटिंग का बेसिक मतलब ये था कि हम लोग ट्रांजैक्शंस को एक जगह रिकॉर्ड कर सके। सो टेक डाउन द फर्स्ट पॉइंट नाउ। अकाउंटिंग इज प्रैक्टिस्ड to keep complete records of business transactions। ध्यान देना, बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रांजैक्शंस हैं, घरेलू ट्रांजैक्शंस नहीं। नो। सेकेंड, आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर ली, सॉरी, पर आपको यही नहीं पता चला कि कितना मुनाफा हो गया, कितना नुकसान हो गया, तो कोई फायदा है रिकॉर्ड करने का? नो। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि आपने इसलिए रिकॉर्ड किया ताकि आपको ये पता चल जाए कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। आप अगर किसी कंपनी में भी इन्वेस्ट करोगे तो आप ये देखोगे ना कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है। आप अपना भी देखोगे तो ये देखोगे। तो अब मैं ये कह सकती हूँ ना कि हमने ट्रांजैक्शंस इसीलिए रिकॉर्ड की थी ताकि हम लोग ये अंदाजा लगा सकें कि हमें कितना प्रॉफिट होगा और कितना नुकसान होगा। ठीक, टेक डाउन द सेकंड पॉइंट। अकाउंटिंग इज टू ascertain the net profit earned. Accounting is to ascertain the net profit earned or loss suffered on account of business transactions. Accounting is to ascertain the net profit earned or loss suffered on account of business transactions during a particular period of time। ठीक है, of particular period of time we'll discuss। आपका एक फाइनेंशियल ईयर होता है जो आपका मार्च और अप्रैल तक रन करता है, तो 12 महीने के लिए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आपने रिकॉर्ड कर लिया, प्रॉफिट लॉस देख लिया, अब क्या करेंगे? लोगों को लेके आएंगे। तो क्या अगेन आई कैन से द कम्युनिकेशन वाला प्रोसेस, अकाउंटिंग कैरी ही इसलिए किया जाता है ताकि आप लोगों को अपनी तरफ ला सकें, इनवाइट कर सकें कि आओ मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ। सो कैन आई से द एंड रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग किस लिए हम कैरी आउट किए जाते हैं? कम्युनिकेशन सबसे एंड का पार्ट है, बट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर विच अकाउंटिंग इज कैरिड आउट। क्योंकि अगर कम्युनिकेट करोगे नहीं तो क्या फायदा इन सब चीजों का? So can I say communicating the information is another important aim? So take down. Accounting is regarded as the language of business. Accounting is regarded as the language of business and hence communicate the result of business activities to management, owners, investors, creditors, lenders and government authorities। We are done with today's session। आज के जो हमारे 3 मेन एम थे, हिस्ट्री, मीनिंग एंड एम, आई थिंक नाउ यू पीपल आर थ्रू विद इट। और जो आपने एकेडमिक लैंग्वेज लिखी है वो भी इतना है। नाउ I am going to discuss about the batch which I am going to launch now. A fresh batch will be launched on 1st August। 1 अगस्त से आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंडक्ट की जाएंगी, दैट इज गूगल मीट। अब क्या फीस स्ट्रक्चर है, हम लोग कितने दिन क्लासेस लेंगे, और ये सारी चीजें आई एड्रेस व्हेन यू विल गिव मी अ कॉल। आप मुझे कॉल करें, यू अप्रोच मी एंड आई आंसर ऑल ऑफ योर क्वेरीज। नाउ आप मुझे कॉल, मेरा जो नंबर है वो आपको यहीं स्क्रीन पर अपीयर हो रहा होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। द सेकेंड वे टू रीच आउट टू मी इज थ्रू माई ईमेल आईडी। मेरी ईमेल आईडी भी स्क्रीन पर अपीयर हो रही होगी और मैंने उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो। सो अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे वहां पर भी पूछ सकते हैं, आई एड्रेस इट। द
name, or you can say the name of my account is also given in the description link below. So if you have any query, you can contact me, you can give me a call. आप मुझे सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में कभी भी कॉल कर सकते हैं. मेल और इंस्टाग्राम पे आप मुझे थ्रू आउट द टाइम 24/7 कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. So you can contact me, we can have a discussion about the fee structure, how the conduct of the class will be. The fresh batch will be launched from 1 August. So let's wind up today's session. Bye bye.